अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तेवार प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ आपका मेज़बान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन हिशाम अल-बलूची हाज़िर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, प्रोग्राम के आज के हल्के में मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से लेफ्टिनेंट हम्मद अल-मर्री, और ये आप जानते हैं कि अवेयरनेस सेक्शन से हैं, अवेयरनेस डिपार्टमेंट से हैं। और अब हम जानते हैं कि जो मौसम है बारिशों का वो शुरू होने वाला है, बल्कि हो भी चुका है, कई इलाकों में बारिशें हुई हैं। इस मौजू पे भी हम बात करेंगे और उनकी जो हिदायत होंगी, उसके अलावा दीगर जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके सिलसिले में भी हमारी गुफ्तगू होगी, और उसके अलावा जो उमूमी तौर पर जिन बातों का हम तज़किरा करते हैं और जिनको हम याद रखना चाहते हैं, वो तमाम की तमाम बातें इंशाल्लाह हमारे आज के इस एपिसोड में आप सुन सकेंगे। सबसे पहले उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद उनसे बातचीत का सिलसिला आगाज़ होगा। يسعدني أن نرحب بسيادة الملازم حمد سالم النهاب المري، ضابط في إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في إذاعة الوضوء. حياك الله سيادة الملازم. يعني كل ما تجينا ما شاء الله تفيدنا بمعلومات اللي بتكون جديدة فبتكون مفيدة ومتجددة، ويعني احنا مقبلين على موسم الأمطار بإذن الله. فقبل أن ندخل هذا الموسم بماذا تنصحنا؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على هذا الإطراء أستاذ عبيد. مرحبا. الإدارة العامة للمرور في خدمة هذا الوطن والشعب، مواطنين ومقيمين، لإيصال بعض المعلومات التوعوية اللي تقل من المخاطر أو من الحوادث أو من الوفيات، وهذا هو الهدف السامي للقانون في دولة قطر. بداية في موسم الأمطار موسم خير وبركات، نتمنى إن شاء الله أن احنا نقلل من عدد الوفيات أو من الحوادث فيه. هو موسم يعني بالنسبة لأكثر الناس يكون ممتع للطلعات والروحات. نعم. من أكثر الناس يطلعون من بيوتهم يرفون عن أنفسهم. صحيح. فبعد خروجك من البيت أولا حط في بالك أن أول المشاكل اللي ممكن تصادفك بتكون بسبب الأمطار، لأنها بتغير في الشارع بعض الشيء. بداية بيكون هناك تجمعات للمياه، ممكن تجمعات المياه هذه تسبب إشكاليات في دخول السيارة في تجمعات المياه. نعم. تصل تجمعات المياه أو الماء يعني إلى بعض المناطق في السيارة، بعض الأجزاء في السيارة، ممكن يعطل بعض القطع في السيارة، مما يتسبب في وقوف السيارة في هذه التجمعات. هذا واحد. اثنين، تجمعات المياه هذه ممكن تكون مفاجئة وممكن تكون عميقة جدا، فيكون هناك ضربة في الشارع. ممكن يعني مثلا تكون تحتها حفرة أو يكون تحتها شيء جسم ثابت مثلا طابوق أو كذا، فبعد صدامك فيها ممكن أنه يتسبب لك ضرر جسماني أنت أو الراكب اللي معك. كذلك أيضا نتأكد من المكابح اللي هي البريك السيارة. ممكن أن إذا كان على سرعة، حتى لو كانت السرعة قانونية، سرعة الشارع 60 80 100، ممكن أنك تتفاجأ بشيء في الطريق فتحاول أنك توقف السيارة، ما تتوقف معك، السبب أنه يكون في زحف للسيارة وانزلاق. ثالثا اللي هو مساحات القزاز، اللي هي مساحات السيارة، اللي مساحات الزجاج. ممكن المساحات إذا ما كانت تعمل بصورة جيدة ممكن يجمع الماء على الزجاج، مما يعيق الرؤية. صحيح. في الشارع. كذلك ما يترتب عليها أيضا حوادث. عندنا ترك مسافة آمنة بين السيارات. حتى مثلا تكلمنا أن في السرعة بتكون سرعة قانونية، بيكون مسافة، بيكون عفوا أنا مأمن على البريكات، مأمن على هذا، ولكن المسافة مش آمنة. ممكن أنا في أي وقت يكون الشخص اللي قدامي هذا يضرب بريك، أتفاجئ أنا أن الشخص هذا اللي قدامي يوقف، فيكون عندي اصطدام أو يكون عندي حادث. صحيح. هذا ما أشوف أنه يعني الأكثر شيوعا. نتمنى إن شاء الله السلام إن شاء الله. मेरा जो सवाल था, हमारे आज के जो मेहमान हैं लेफ्टिनेंट हम्मद सालिम नहाब अल-मर्री, जो कि अवेयरनेस डिपार्टमेंट से हैं, वो ये था कि अब बारिशों का मौसम आ रहा है, तो इस मौसम से पहले आप हमें किन चीज़ों का मशवरा देंगे, किस तरह तवज्जो दिलाना चाहेंगे? तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, बल्कि वज़ारत दाखिला है, तो उनका जो मकसद है
आला और अरफा मकसद वो ये है कि सिटीजन्स जो हैं कतर के और जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर उन सब की खिदमत की जाए और मकसद ये है कि सबकी हिफाजत की जाए, सबके जान माल की हिफाजत की जाए। बारिश का जो सीज़न है, मौसम है, ये खैर व बरकत का मौसम है और इसमें हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस प्यारे मौसम में हादसात कम से कम हों, क्योंकि मौसम इतना दिलकश और इतना बेहतरीन होता है, इतना शानदार और जांफिज़ा मौसम होता है कि सब लोग बाहर निकलते हैं। अगर आप वीकडेज़ में ना भी निकलें तो वीकेंड पे तो निकलते ही हैं और बड़ी तादाद में निकलते हैं। अब अगर बारिश हो रही है तो आम दिनों में भी आपकी ये आदत होगी, मेरी भी है, सबकी आदत है कि भाई बारिश हो रही है चलो बाहर, बच्चे भी कहते हैं चलो बाहर। अब उसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बारिश की वजह से जो आम दिनों में जिस सड़क पे आप चलते थे उसी सड़क पे कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, यानी जो कंडीशन है रोड की वो चेंज हो सकती है। मसलन आपको मुमकिन है कि आप देखें कि पानी कई जगह रुका हुआ है और ये पानी जिस जगह जहाँ पर रुका होता है उस रोड की हालत के एतबार से कहीं पर गहरा भी हो सकता है और कहीं पर उसमें मिट्टी वगैरह मिक्स हो सकती है, कहीं पर वो मतलब इतना ज़्यादा होता है, इतनी गहराई होती है कि उससे मुमकिन है कि आपकी गाड़ी का कि इंजन का कोई पार्ट काम करना छोड़ दे और आपकी गाड़ी वहाँ पे रुक जाए या कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए। मुमकिन है कि चूँकि पानी है और वहाँ पे कोई गड्ढा बन गया और आप जैसे ही उसमें गए पानी में आपकी गाड़ी गई तो गाड़ी एकदम से नीचे लगी, पता चला कि वहाँ पे नीचे कोई पत्थर था, ताबूक था, कुछ था। तो अचानक ये चीज़ें हो जाती हैं, हो सकती हैं, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है गाड़ी चलाने वाले को या गाड़ी में जो बैठे हैं उनको कोई झटका लग जाए, चोट लग जाए, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं और ये आपके जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रेक, पानी पड़ने से आपको पता है कि ब्रेक नहीं लगते, कम लगते हैं, देर से लगते हैं, गाड़ी स्लिप कर जाती है। मतलब उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा नहीं है, वो कानूनी स्पीड है, जो भी 60, 80, 100 जो भी स्पीड है आप उस पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो ब्रेक का आप ख्याल करें। वाइपर्स जो आपके हैं विंड स्क्रीन के, वाइपर को आप चेक करें, क्योंकि अगर वाइपर सही काम नहीं कर रहे होंगे तो पानी आपकी स्क्रीन पर से हटेगा नहीं स्क्रीन से और उससे आपको देखने में परेशानी होगी। और उसके अलावा एक चीज़ उन्होंने एक और कही कि सेफ डिस्टेंस आपको छोड़ के चलना है। आप ठीक है, आपकी रफ्तार ठीक है, कानूनी रफ्तार से आप चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि वो स्लिप कर जाए। आपने गाड़ी जब ब्रेक से रोकना चाहिए तो वो रुकी नहीं और आगे बढ़ के दूसरी गाड़ी को लग गई। तो ये चीज़ें वो उन्होंने कहा कि ये वो नुमायां तरीन चीज़ें जो बारिश के मौसम में आपको पेश आ सकती हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तकमिला लिलसवाल सियादत الملازم حمد فيما يتعلق بالشوارع الخارجية هايويز يعني خلال موسم الأمطار، يعني بماذا تنصح؟ أي المسار اللي نختارها حتى يعني نتفادى المفاجآت؟ طبعا عبيد في كل الطرق، نعم، سواء كانت الهايوي الخارجية يعني مثل شارع خط الشمال أو خط سلوى أو الخطوط اللي هي مثل 22 فبراير، مثل خط سلوى اللي بين السيارات اللي بين المجمعات. هذه دائما نحاول فيها أن احنا نكون أقل سرعة من سرعة الشارع. مثلا سرعة الشارع 80 نمشي 60، ولكن ما نمسك المسار الأيسر. المسار الأيسر هذا هو مسار التجاوز عادة. فإذا كان مسار التجاوز ممتلئ بالسيارات، حتى وإن كانت هناك سيارات مخالفة تمشي بأكثر من سرعة الشارع، إذا أنا بمشي أكثر من سرعة الشارع ما في مشكلة إني أنا أمشي أكثر من سرعة الشارع 10 مثلا، على أساس إني أتجاوز سيارات من المسار الأيسر وأرجع للمسار الأوسط. فلذلك نشوف أكثر المسارات عندنا في الدوحة من 3 إلى 4 مسارات. فنحن نختار المسار مش الأيسر اللي بعده على طول، أو المسار اللي في النص، على أساس إذا أنا بمشي على سرعة الشارع ومنتظم أو أقل من سرعة الشارع ب10 أو 20 ما أعرقل حركة السيارات اللي عندها تجاوزات. طبعا السيارات اللي عندها تجاوزات احنا ما نتكلم ان السيارات هذه دائما بتكون مخالفة. ممكن السيارة هذه صاحبها مستعجل نوعا ما، ممكن يتجاوز وبعدها يرجع على المسار اللي في النص. على القانون هناك يعني نعم هناك قانون يردعهم. أنا يعني لاني شخص مطبق للقانون، صح. يعني صحيح. أنا في الشارع أنا إنسان مدني أمشي على القانون، أشوف أن القانون هذا هو الصح. هناك مخالفين لهم من يحاسبهم.
دائما اختار المسار اللي تشوف انه هو الانسب لك. ثانيا تحاول ان ما تطبق القانون بنفسك. يعني هناك ناس نشوفهم يمسك المسار الايسر ويمشي بسرعه الشارع. يعني مثلا سرعه الشارع 100، يمسك المسار الايسر ويمشي بسرعه 100 ويحكم هذا المسار، وهذا مخالفه قانونيه. طبعا هي مخالفه قانونيه هذا الجزء. السبب اولا انت مخول بتطبيق القانون في الشارع. ثانيا تعتبر من عرقلة حركة السير في الشارع أو المشي ببطء. طبعا وكذلك أيضا إذا كانت سرعة الشارع 100 لا يجوز أن تمشي بسرعة 40 حتى في المسار الأيمن. سرعة الشارع 100 تمشي من 80 إلى 60 إلى 100. السبب أنك إذا قليت من سرعة الشارع ممكن تتسبب لي في ازدحامات أو اختناقات مرورية. صح. هذا أيضا من الإشكاليات. وأيضا الأشياء المتطايرة ممكن بسبب الهواء أو الأمطار. يعني إذا كنا على طرف الشارع فممكن نتفاجأ بمثل هذه الأشياء. دائما احنا نتكلم في ترك المسافة الآمنة. ترك المسافة الآمنة هذه الجميع الأشياء اللي ممكن أو المفاجآت اللي بتصير في الطريق. كل المفاجآت ممكن يتفاداها الشخص اللي قدامي أو اللي هي المركبة اللي في الأمام. إذا كانت المركبة اللي في الخلف يعني تاركة مسافة آمنة فممكن أصلا ما يصير حادث. لكن إذا تجاوز اللي هي مفاجأة الطريق ولكن تفاجأت أن السيارة اللي وراي كانت قريبة جدا، فأنا أكيد بيكون في حادث. إذا ما كان في حادث من أمام السيارة بيكون في حادث من خلف السيارة. فدائما نضع مسافة آمنة لعله عسى نتفادى هذه الحوادث. صحيح. يعني سواء كان أمطار وغير أمطار المسار الأضمن هي اللي بعد المسار الأيمن يعني في الوسط. मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो बारिश के दिनों में आमतौर पे जब हम बाहर की जो हाईवेज हैं, जो बाहर की जो रोड हैं, जो कि आपको पता है वसी और अरीज बहुत ज़बरदस्त किस्म के रोड्स बने हुए हैं, उन पे आप चल रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने आप को ज़्यादा महफूज आप किस ट्रैक पे रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाहे वो हाईवेज हों, चाहे ये जिससे 22 फरवरी ये वाला जो दोहा हाईवे या शिमाल एक्सप्रेस वे है, ये सलवा रोड है या और जो रोड्स हैं, तो उसमें बारिश के दिनों में आपको एक तो ये है कि जो जितनी उस रोड की स्पीड लिमिट है उससे थोड़ा सा कम ही रख करके चलें। बारिश के दिनों में उससे कम रख के चलें और फास्ट ट्रैक को छोड़ के चलें। हमेशा जो फास्ट ट्रैक के बाद वाला या उसके बाद वाला, क्योंकि दोहा में अब कहीं पर भी जो कम से कम ट्रैक हैं वो 3 हैं, वरना ये है कि 4 और उससे ज़्यादा बन चुके हैं हर जगह। तो पहला जो ट्रैक है फास्ट ट्रैक जिसको हम कहते हैं, जो डिवाइडर के साथ होता है, उसको आप छोड़ के चलें क्योंकि वो ओवरटेक करने के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये आप हमेशा ज़हन में रखें कि उस ट्रैक पे आपको मुसलसल नहीं रहना है। आपने ठीक है ओवरटेक करना है, आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, ओवरटेक किया, आप वापस अपने सेकंड या थर्ड ट्रैक पर आप आ गए और उसी ट्रैक पर आप चलते रहें। अब अगर कोई शख्स आ रहा है जो कि बहुत स्पीड में है, जो कि आपको लग रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये तो ओवर स्पीडिंग वाला केस लग रहा है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। कानून वाले मौजूद हैं, वो देखने वाले मौजूद हैं, कैमरे मौजूद हैं, रडार मौजूद हैं, वो उनका काम है, वो देखेंगे। आप वहाँ पर इसलिए नहीं है कि आप दूसरों पर कानून नाफिज करें या दूसरों से कानून पर अमल दरामद करवाएं। आप इसलिए हैं कि आपको कहीं जाना है तो आप सेकंड थर्ड ट्रैक पे रह करके आप चलते जाएं और कानून को दूसरे के ऊपर आप खुद लागू करने की कोशिश ना करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो ट्रैक है, जो फास्ट ट्रैक है, उसको आप पकड़ के चल रहे हैं, आप हट ही नहीं रहे उसके ऊपर, तो ये भी कानूनी खिलाफ वर्जी है। ठीक है, वो 100 का या 120 का ट्रैक है, आप 120 या 100 पे ही चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्पीड से आ रहा है तो आपको उसको रास्ता देना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो जी कानूनी स्पीड पे चल ही रहा हूँ, 120 पे चल रहा हूँ, 100 पे चल रहा हूँ या 80 पे चल रहा हूँ, जितनी की भी वो रोड है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपको उस ट्रैक को छोड़ के चलना है, ट्रैक को पकड़ के रखना है, तो आपके लिए मसला हो सकता है। क्योंकि अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई स्पीड कहीं किसी रोड की 100-120 है और आप वहाँ पे 40 पे चल रहे हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपकी वजह से भीड़ लग सकती है पीछे, इसका भी जुर्माना है और कानून इस पे भी आपका मुआवजा करेगा। तो ओवर स्पीड भी नहीं करनी है, स्पीड पे रहते हुए आपको फास्ट ट्रैक को मतलब घेर करके नहीं चलना है और इतनी भी कम स्पीड में नहीं चलना है कि आपके पीछे जो है बेचारे वो सारे लाइन लगते जाएं और सारे परेशान हो जाएं। तो ये चीज़ जहन में रखनी। दूसरा ये कि बारिश के दिनों में ऐसा हो सकता है, हवा चलती है, तेज़ चलती है, तो साइड से कोई चीज़ उड़ करके अचानक आपकी विंड स्क्रीन पे आ जाए
है, तो उससे भी बचने के लिए या आम दिनों में भी, आम हालात में भी हर तरह के जो सड़क के किनारे से जो हादसात हो सकते हैं उनसे बचने का जो बेहतरीन तरीका है, ये हल है, वो ये है कि आप बीच वाले ट्रैक में आप हमेशा चला करें, सेकंड या थर्ड ट्रैक में आप चला करें और अपने आगे पीछे वाली गाड़ियों से एक डिस्टेंस पे रहें, ताकि खुदा न खास्ता अगर अचानक कोई चीज़ सामने आती है तो आप उसके मुताबिक आप फौरी तौर पर गाड़ी को रोक सकें, मोड़ सकें या कोई जो भी मुनासिब इक़दाम है वो आप कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी हैं। طيب سيادة الملازم حمد المري، ننتقل إلى موضوع اللي هو مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. آخر مرة خذينا هذا المحور ولكن مو بالتفصيل. فعقوبة إيقاف السيارات في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وليش أنتم مشددين على هذا الموضوع؟ المواقف الاحتياجات الخاصة هي مخالفة أولا أخلاقية. يعني أنا بالنسبة لي أنا ما أرضى بها كشخص نهائيا لسبب قلة أخلاق صاحبها، أو يعني تعديه على حقوق الآخرين. تعديك على حقوق الآخرين هذا باب كبير وواسع. نبدأ فيها من إشكالية الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هؤلاء من الناس المحتاجين جدا لهذه المواقف، بداية لكبر حجم هذا الموقف، هو أوسع من الموقف العادي. ثانيا قربها من أماكن أو الباب يعني من أماكن الدخول. ثالثا بيكون هناك اللي هو السلوب اللي هو المنحدر اللي يقدر يطلع معه بالدراجة أو ينزل معها. دائما مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة مخصصة لهم عن طريق الإدارة العامة للمرور واللجنة الطبية. هناك تقرير يتقدم به وبعدها إذا كان يستحق فعلا بيكون هناك كرت. إذا أخذ الشخص هذا كرت فهو فعلا محتاج لهذا الموقف. فتعديك على هذا الموقف أولا تعديك على حقوق هؤلاء الناس أو هؤلاء الشريحة من الناس. ثانيا تعديك عليهم أيضا يعد مخالفة مرورية. المخالفة المرورية هي 1000 ريال وحجز لمدة أسبوع. طبعا أنا أشوف المخالفة هذه غير كافية، ولكن إن شاء الله راح نكتب فيها كتاب إنه يكون أشد، عقوبة أشد. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا اليوم في فترة نشوف إن الوعي زاد فيها والإدراك. قلة ما نجد مخالفات اللي هي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحت نادرة جدا. ممكن في أول كان في الشهر نحصل أكثر من 500-600 مخالفة، الحين ممكن تكون عدد 2-3. فيعني هي نسبة وتناسب مع زيادة عدد السيارات في الشارع. نشوف أنها فعلا هناك وعي وإدراك. ثانيا من المواقف يعني اللي تحصل علينا احنا نشوف كيف طريقة نزول هؤلاء الأشخاص من السيارة. فلما تشوف طريقة خروجه من السيارة فعلا هو شخص مستحق أن المكان يكون أوسع من المكان العادي. صح. فإذا كان الشخص هذا إذا يبي ينزل من السيارة بينزل. أنا كشخص عادي لما أنزل في المواقف العادية أبي أنزل للموقف العادي ما أقدر، بعض المرات نطلع على جنب يعني بصعوبة جدا. فما بالك بشخص يحتاج له كرسي أصلا على أساس يخرج الكرسي من السيارة ويسوق. بعض الناس بعض الشريحة منهم هو اللي يقود بنفسه وهو اللي يخدم نفسه بنفسه يعني. صح. تشوف ان الدراجة معه وينزل الدراجة ويمشي عليها. هذه ايضا من تعديك على حقوق الاخرين. ايضا من التعدي على حقوق الاخرين تعدي على حقوق المشاة. ايضا اللي نشوف عندك المشاة في بعض المناطق المكان مخصص للمشاة. هناك خطوط باللون الابيض عرضية، يعني ممكن الشخص هذا يمشي عليها، وهناك اشارة باللون الاحمر والاصفر والاخضر تسمح للماشي هذا بعبور الطريق. فنشوف في بعض الأماكن ممكن ما يكون فيه إشارات، يعني بتكون الإشارة باللون الأصفر لأن الحركة فيه يعني ضعيفة. فأول ما يجي الشخص هذا يبي يعبر الشارع تشوف أن السيارات بتزيد السرعة. فإذا زادت السرعة السيارات هنا يكون الخطأ على من؟ على السائق. الخطأ على السائق. أما إذا كان الخروج خاطئ من مكان غير مخصص للمشاة هنا يكون الخطأ على من؟ على الماشي. وهو بيكون على الرقم الشخصي. يعني ممكن أن الشخص هذا ما يطلع برا الدولة حتى لو ما كان يسوق سيارة. يعني هو أصلا ما يملك سيارة، فممكن أنه ما يطلع من الدولة إلا بعد ما يدفع مخالفة عبور الطريق بشكل خاطئ. طبعا هي مخالفتها 500 ريال، على السائق أيضا 500 ريال. تعتبر من التعدي على حقوق الآخرين. أيضا من التعدي على حقوق الآخرين من يعني المخالفات اللي احنا نشوفها التعدي على حقوق الآخرين تجاوز من اليمين، راح نتكلم فيها. اوكي ان شاء الله بنتكلم ها. طيب मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो लोग माजूर अफराद हैं जिनके लिए खुसूसी तौर पर आपने देखा होगा कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं या मस्जिद है या हॉस्पिटल्स हैं
या सरकारी और गैर सरकारी इमारतें हैं, हर जगह उनके लिए खुसूसी तौर पर पार्किंग्स होती हैं और वहाँ पर कई दफ़ा ऐसी गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ जाती हैं कि जिनको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो इन लोगों की जो पार्किंग है उसको सेफ रखने के लिए, ताकि वहाँ पे दूसरे जो सही सलामत लोग हैं जिनको कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है, उनके खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि देखें, ये जो इस तरह जो लोग करते हैं उनको पहले तो ये जानना चाहिए कि आपका ये अमल, यानी माजूर लोगों के लिए मखसूस पार्किंग में गाड़ी को खड़ा करना, ये कानूनी वायलेशन, खिलाफ वर्जी होने से पहले अखलाकी खिलाफ वर्जी है, मॉरल वायलेशन है कि आपके अखलाकियात आपको कैसे इजाज़त दे रही हैं कि आप एक माजूर शख्स का हक, आप दूसरे का हक ले रहे हैं। और जब हम दूसरों के हक लेने की बात करते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादती की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा कहिए कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिस पे हम बात कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने की भी हैं। कमिंग बैक टू पार्किंग, ये जो हम हैंडीकैप पार्किंग है इसकी बात करते हैं, ये आम जो पार्किंग होती है उससे ज़्यादा चौड़ी होती है। आप देखिएगा, कभी भी आप गौर कीजिएगा कि जो आम जो पार्किंग है उससे ज़्यादा जगह होती है इसमें, और ये जो इमारत का जो दरवाज़ा है, एंट्रेंस है, उसके बिल्कुल करीब होती है, और वहाँ पर एक स्लोप भी बना होता है ताकि व्हील चेयर अंदर जा सके। जिन गाड़ियों को वहाँ पर खड़ा किया जा सकता है या जिन लोगों को ये इजाज़त मिलती है वो ऐसे ही नहीं मिल जाती है। उनका बाकायदा एक मेडिकल टीम है जो एसेस करती है, सर्टिफिकेट जारी करती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एक कमेटी है जो उसको देखती है, और जब वो तमाम चीज़ें जो शराइत हैं उन पर वो शख्स पूरा उतरता है तो उसको एक मखसूस कार्ड जारी किया जाता है। ये कार्ड जिसके पास है, जिस गाड़ी में है, स्टिकर है, तो इसका मतलब ये है कि वाक़तन वो शख्स इस पार्किंग का मोहताज है। अब अगर आपने उसके खिलाफ वर्जी की और वहां जाकर के चाहे 1 मिनट के लिए आपने गाड़ी पार्क की तो 1000 रियाल का फाइन और 1 हफ्ते गाड़ी आपकी जब्त कर ली जाएगी, 1 हफ्ते के लिए। लेकिन साथ ही साथ लेफ्टिनेंट हमद सालिम नहाब अल-मर्री ने यह भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कतर में सूरत हाल बहुत अच्छी है और लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले उन्होंने कहा कि पहले तो हमें महीने में 500-600 इस किस्म की वायलेशंस मिलती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि 3-4 महीने में हमें मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, उनको मालूमात हैं, उनके पास एहसास है दूसरों का। अच्छा, ये जो पार्किंग होती है ये दूसरी आम पार्किंग से ज़्यादा चौड़ी, ज़्यादा अरीज क्यों होती है? उसकी वजह क्या है? कि आपने देखा होगा, अगर कभी नज़र पड़ी हो, कि ये लोग जिनके लिए ये मखसूस होती है वो अक्सर व्हील चेयर पे होते हैं, और वो कई दफ़ा तो होते हैं कि उनके साथ भी कोई नहीं होता, तो वो खुद ही दरवाज़ा खोलते हैं, व्हील चेयर उठाते हैं, नीचे रखते हैं, फिर खुद ही उसको चलाते हुए उस स्लोप से वो जाते हैं। तो उनको जगह चाहिए कि जिससे पूरा दरवाज़ा खुल सके ताकि जो व्हील चेयर है वो आराम से नीचे उतर सके और फिर वो अपना जहाँ भी उनको जाना है वो आराम से जा सकें। आम दिनों में आप देखें कि हम कहीं पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं किसी भी पार्किंग में, और अगर दूसरा वाला बंदा जो है उसने थोड़ी सी दाएं बाएं खड़ी कर दी तो हमें उतरने में कितनी परेशानी होती है। टेढ़े मेढ़े होके हम अपना दरवाज़ा खोल के मुश्किल से उतरते हैं या बैठते हैं। तो जब ये हमारा हाल है तो उनको तो आप सोचिए कि उनको तो जब तक पूरा दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो उनके लिए परेशानी है। तो कभी भी आप गाड़ी अगर खड़ी करते हैं उनके बगल वाली पार्किंग में भी, तो ये चीज़ जहन में रहे आपके कि उनको उतरते हुए परेशानी ना हो, उनके लिए जगह आप जितना आप छोड़ सकते हैं वो आप करें। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि जब हम दूसरों के हुकूक मारने की बात करते हैं, जो पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनके भी हुकूक हैं और उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, हुकूक भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। उन्होंने एक मिसाल दी कि जैसे आप देखें कि रोड के ऊपर ऐसी वो लकीरें, लाइंस बनी होती हैं कि जो पैदल चलने वालों को के लिए मखसूस होती हैं कि वो यहाँ से रोड को पार करेंगे। अब बाज़ गाड़ियां, उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि जब वो देखा कि अभी जो सिग्नल है वो येलो है तो वो तेज़ी के साथ आते हैं और उनकी कोशिश होती है निकलें। अभी सूरत में अगर वो जगह ऐसी है कि जो मखसूस है पैदल चलने वालों के लिए कि वो रोड को पार करें और उनका जो सिग्नल है वो वहाँ पर मौजूद है, अब आदमी आया और उससे अगर कोई हादसा हो जाता है गाड़ी वाले से तो गलती उसकी है, क्योंकि उसने पैदल चलने वालों का हक मारा है, उनकी जगह थी वो। लेकिन
अगर पैदल चलने वाला किसी गैर मखसूस जगह से रोड को क्रॉस करता है, इस तरह का कोई मसला है, तो उसके ऊपर भी जुर्माना हो सकता है उसके पास गाड़ी भी ना हो, लाइसेंस भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन ये जुर्माना हो सकता है 500 रियाल का उसके ऊपर, और ये उसके आईडी नंबर पर होगा और ये उसको पे करना होगा तो ही वो जा सकेगा मुल्क से। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का भी हक हो उसकी हिफाजत करनी है हमें, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले का हक हो, चाहे वो रोड पर पैदल चलने वाले का हक हो, बहर सूरत हमें उसका ख्याल रखना है। طيب سيادة الملازم محمد النهاب المري، ننتقل إلى محور آخر وهو أيضا يعني طالما نردد ونسمع منكم هذه الكلمة أو هذه الجملة: احذروا من أخطاء الآخرين. شنو هي أخطاء الآخرين يعني؟ طبعا أي شخص أخذ رخصة قيادة أنا أجزم أن الشخص هذا يعرف يسوق. يعني إحنا في دولة قطر يتعب الشخص على أساس أنه يأخذ الليسن. صح. فبعد خروجك من مدرسة تعليم القيادة إلى الشارع وخبرتك في القيادة سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات، أنا أجزم أنك شخص تعرف تسوق. ولكن الحوادث اللي من الشارع اللي في الشارع هذه جات من وين؟ يعني لما نرجع نشوف الحوادث هذه، عدد الحوادث 1000-2000 حادث، من وين جات؟ إذا كان كل اللي في الشارع يعرفون يقودون. يعني كل شخص لما أجي أقول له كم خبرتك في السياقة بيقول أكيد 5-6 سنوات 10 سنوات مثلا. إذا الأخطاء هذه من وين؟ هذه هي الأخطاء اللي تكون يعني مثلا عدم انتباه، عدم ترك مسافة كافية، الانشغال بالقيادة، الانشغال بالهاتف من القيادة، الانشغال بالأجهزة المرئية، الأكل والشرب أثناء القيادة، النعاس وقلة النوم. إذا الإشكاليات هذه هي أخطاء ممكن ما تكون مني أنا، ممكن تكون من الأشخاص الآخرين. في أيضا القيادة برعونة، يعني ممكن يكون في شخص عنده قيادة برعونة لسبب من الأسباب، سواء كان يعني جهل منه وقلة إدراك للمخاطر، أو نفترض أن الشخص هذا عنده يعني إشكالية أو يعني من مرض. ممكن بعض الناس يكون معه هبوط في السكر مثلا، ممكن يكون يعني إشكاليات أسباب متعددة. أسباب متعددة. ولكن أنا في بداية أخذي للليسن أبوي الله يذكره بالخير قال لي كلمة واحدة، قال لي احذر أخطاء الآخرين. فقال لي كل الناس اللي في الشارع ما يعرفون يقودون السيارات، اعتبر الناس اللي في الشارع كلهم لا يعرفون يسوقون. فأول ما طلعت في الشارع حسيت إني أنا شخص لا يعرف يسوق فعلا. ليش؟ سببت لنفسي من داخل رهبة، خوف من الناس كلهم. ففعلا لما تركز في الشارع بتحصل أكثر الناس بيكون إذا كان مشغول يسبب لك خطر، مش لك أنت بس، لك والنفسه والناس اللي حولك. فالانشغال هذا من أكبر الإشكاليات اللي صارت في الشارع. وإحنا اليوم عندنا آفة في المجتمع، آفة المجتمع اليوم هو الهاتف النقال أو التلفون. طبعا كل عصر آفة، يعني كل فترة بيكون فيها إشكالية الناس يشوفون أنها إشكالية كبيرة. اليوم التلفون هذا هو آفة المجتمع. يعني حتى أي شخص يسوق ويقول لك أني أنا ممكن أركز في التلفون وفي القيادة مع بعض، مستحيل أن يكون شخص قلبين أنه يكون مركز في حاجتين مع بعض. فأكثر الإشكاليات اللي تكون من التلفون، إحنا بنشوف إنها حوادث، بتشوف سيارة تمشي تنحرف عن المسار يصير لها حادث من طرف واحد. لما تجي شخص تسأله إيش كان سبب الحادث يقول لك إن الإشكالية كانت في التلفون. أيضا هذه من أخطاء الآخرين، هذا ممكن لما يلف ينحرف من طريقه، ممكن يدعمني أنا ما يدعم السياج أو يدعم. فأنا لما أكون منتبه ومتوقع الأخطاء من الآخرين، إن شاء الله أنا راح تقل عدد الحوادث في الشارع. أيضا راح أتجنب الإشكاليات من التأمين ومن تعطل مصالح، إني أنا أوقف السيارة في الجراج مثلا أو أوقفها. هذا أيضا من أخطاء الآخرين. فتجنب أخطاء الآخرين هو تجنب فعلا لابد منه. मेरा जो सवाल था वो ये था कि हम एक जुमला हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भैया रोड पे जब निकलो तो दूसरों की गलतियों से बच के चलो। हमेशा ये जुमला हम सुनते हैं और हमेशा मैंने उनसे कहा कि आपका जो इदारा है वो ये हमें कहता रहता है, तो आखिर इसका क्या मतलब है? यानी दूसरों की गलतियों से, आपके लिए मैं दूसरा हूँ, मेरे लिए आप दूसरे हैं, तो मतलब मैं आपकी गलतियों से बचूं, आप मेरी गलतियों से बचें। तो हालांकि दावा आपको भी है कि आप गलती नहीं करते, दावा मुझे भी है कि मैं गलती नहीं करता, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो उसके जवाब में लेफ्टिनेंट हमद नहाब अल-मर्री ने ये कहा कि देखें, लाइसेंस तो सबके पास है और ये भी तय है कि जिसको लाइसेंस मिल गया तो मतलब ये है कि गाड़ी तो वो चला सकता है, क्योंकि कतर में लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं।
तो उसके बाद फिर वो बंदा गाड़ी चलाता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो मतलब ये कि उसके पास तजर्बा भी है। रोड पर जितने भी लोग आपको मिलेंगे तो कई सालों से वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर सब तजर्बाकार हैं, सबके पास लाइसेंस है, सबको कानून मालूम है, तो फिर ये हादसे कहाँ से होते हैं? मतलब ये 1000-2000 हादसे जो साल में हो जाते हैं, ये कहाँ से होते हैं? सब तजर्बाकार हैं, सबके पास लाइसेंस है, कानून के मुताबिक लाइसेंस लिया है, तो आखिर ये ट्रैफिक एक्सीडेंट क्यों होते हैं? ठीक है, इसका जो अमली जो इसको जब आप एनालाइज करते हैं ना, तज्जिया करते हैं इसका, तो वो ये होता है। बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि जी वो तकदीर है, तो तकदीर असबाब के साथ होती है ना। सबब क्या था? सबब ये होता है कि गाड़ी चलाने वाला वो पूरे तौर पर मुतवज्जे रोड की तरफ नहीं है, उसकी तवज्जो कहीं और भी है, किसी और चीज़ में भी वो मशगूल है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे पता चला कि नींद कम की थी तो सो गया, कुछ भी जो कोई भी ऐसी जो चीज़ जो कि आपको कहीं और मुतवज्जे कर सकती है, वो हो सकती है। तो यही है कि कोई जो है बहुत ही रफ ड्राइविंग कर रहा है, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, चाहे उसके कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे मतलब कोई भी किसी भी सबब से वो गाड़ी सही नहीं चला रहा है, वो ड्राइविंग सही नहीं कर रहा है। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हमने गिनवाई हैं, जितने भी असबाब गिनवाए हैं, इनका जो नुकसान होगा वो गाड़ी चलाने वाले को ही नहीं होगा, वो हमें भी होगा। तो अब हमें इन दूसरों की इन गलतियों से बचना है। क्या होता है कि अच्छा, फिर ख़ास तौर पर उन्होंने जो है मोबाइल पर बात की कि उन्होंने कहा कि ये आज की जो सबसे बड़ी जो आफत मुसीबत है आज की दुनिया की कम्युनिटी के लिए, वो ये स्मार्टफोन या ये मोबाइल है कि जिसकी वजह से हादसा होते हैं। लोग उसमें बिजी इतने हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि उनकी गाड़ी किधर जा रही है। और आप खुद तजर्बा करके देखें कि अगर आप कभी जा रहे हैं और आप थोड़ा सा ख़ास तौर पर अगर कुछ लिखने विखने की बात आ गई तो पता चला कि गाड़ी आपकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डी ट्रैक हो गई। अब अगर कोई शख्स है जो आपके अगल बगल गाड़ी चला रहा है और मोबाइल में लगा हुआ है, उसकी गाड़ी जा रही है दूसरी तरफ, उसको अंदाजा नहीं हो रहा है, आप उसके बगल में, आप अपने आप को बचाएं, उसकी गलती से आप बचें, उसको तो पता ही नहीं है। जब तक आप उसको हॉर्न वन मार के बताते कि भाई कहाँ जा रहे हो, तब तक पता चला कि वो तो मार दी गाड़ी उसने। तो अब आपको उसकी गलती से बचना है और बचेंगे आप, ठीक है, गलती उसकी मानी जाएगी, कानूनन भी गलती उसकी मानी जाएगी, लेकिन कहाँ आप इंश्योरेंस में घूमते फिरेंगे, कहाँ आप गैराज में गाड़ी खड़ी करेंगे, कहाँ अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को देखें रोड में कि वो कैसी गाड़ी चला रहे हैं। उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मुझे भी जब लाइसेंस मिला तो मेरे वालिद ने मुझे यही कहा, यही नसीहत की कि गलतियों से बच के रहें। खुश आमदीद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुलिस और अवाम, उबैद ताहिर के साथ, और मेरे तकनीकी मुआविन है जासिम अल हद्दाद, और हमारे साथ जो मेहमान हैं आज वो हैं लेफ्टिनेंट हमद सालिम नहाब अल मर्री, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अवेयरनेस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। और बहुत ही अहम बातों का तज़किरा हम कर रहे हैं, बार बार करते हैं ताकि हमें ये याद रहे और हम किसी भी सूरत में खुदा ना करे कोई ऐसा मसला हमारे सामने आता है तो हमें पता हो कि हमें क्या करना है। अच्छा, ऐसा ही एक मसला होता है और ये एक अजीब बात है कि इतना ज़्यादा इस पर हम ध्यान देते हैं, इतना ज़्यादा इसका प्रचार एडवर्टाइज़ करते हैं, बताते हैं हर प्रोग्राम में कि भैया अगर कोई रोड के ऊपर हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि लोग जो हैं खड़े होते हैं, बीच रोड में खड़े हैं, आगे पीछे लोग जो हैं बेचारे हाथ मार मार के परेशान हैं, लेकिन ये लोग खड़े होते हैं। तो यही मेरा उनसे अब सवाल होगा। सियादतुल मुलाज़िम हमद नहाब अल मर्री, अल्लाह यहफ़ज़ अल जमीअ मिन अल हवादिस, लेकिन कमा तफ़द्दलत फ़ी الجواب السابق أن الحوادث تحدث.
لكن طبعا الحوادث يعني أنواع، منها حوادث بسيطة ومنها حوادث يعني شوي اللي فيه الجريح والأشياء هذه، الله يحفظ الجميع. ففي حال الحوادث البسيطة ماذا يتوجب على السائق أو على السائقين أن يقوما به؟ طيب بداية ما نتكلم عن الحادث هو مثلث. الحادث بيكون المثلث هذا 3 أضلاع، بيكون اللي هي الأخطاء اللي يحصل بسبب الحادث. الضلع الأول الطريق، واليوم احنا بفضل الله سبحانه وتعالى من أفضل الطرق الحمد لله. الضلع الثاني اللي هو المركبة. طبعا حاليا لابد من فحص المركبة سنويا، اللي هو الفحص الفني، الفحص الدوري عندنا الزامي دوري يعني كل سنة. كذلك الضلع الثالث اللي هو سائق المركبة. فما دام في سيارات في الشارع لابد أن يكون هناك حوادث لأي سبب كان. نعم. إن كان من الطريق أو كان عطل أو كان من القائد نفسه لابد أن هناك يكون في حوادث. نعم. فالحوادث أنواع، هناك الحادث البسيط اللي تكلمنا عنه. نعم. أو بنتكلم عنه حاليا، وهناك الحادث المتوسط والحادث البليغ. نعم. طبعا الحوادث هذه كلها بعض المرات يكون هناك هروب من موقع الحادث، يعني أنا أسوي حادث وأهرب من موقع الحادث. حتى وإن كان الحادث من طرف واحد، اللي هو حوادث الطرف الواحد اللي يكون يا اصطدام في جسم ثابت أو يكون يعني حادث انقلاب. كذلك هناك الحادث اللي بين مركبة وبين شخص أو بين دراجة، هذه من حوادث الدهس. مهما كان نوع الحادث من أنواع الحوادث هذه، الواجب على شخص أنه ما يروح من مكان الحادث إلا بعد إبلاغ الجهة المختصة. فهروبك من موقع الحادث هنا الشخص هذا يحال إلى النيابة العامة، إحالته إلى النيابة بسبب هروبه من موقع الحادث. ممكن الشخص هذا يتسبب في إشكاليات أخرى. فلابد إذا عملت الحادث أنك توقف في مكان الحادث على أساس أنك ما تحال للنيابة. طبعا إحالتك للنيابة هذه محكمة، ما نعرف إيش الإجراءات اللي بتكون وراها لأنها إجراءات أنا مش مختص فيها. حسب ما ترى المحكمة. نعم. أما تسجيل الحادث فيكون ب3 طرق، اللي هو الحادث البسيط. ال3 طرق، الطريقة الأولى هو سيد الملازم قبل تسجيل الحادث نتكلم عن المركبة نفسها. هل نتم ننتظر في نفس المكان ولا نحرك المركبة؟ لابد من تحريك. احنا نتكلم الحين على الحوادث البسيطة. لابد من تحريك السيارة من الشارع الرئيسي، لأنها ممكن تسبب لك عرقلة حركة سير أو ممكن تتسبب في حوادث أخرى. يعني حتى بعض المرات نشوف على الشارع الثاني الناس اللي جايين تحصل الناس هذول يطالعون في الحادث. يعني اللي هو الإنسان دائما فيه فضول. فبتشوف ان الشخص اللي على الشارع الثاني راح يطالع الحادث، يحاول انه يشوف ايش سبب الحادث، يخطط الحادث. طبعا هذا فضول في الانسان. صح. ويشوف اذا في ناس متوفين، في ناس في اصابات، فهذا ممكن يسبب حوادث اخرى على الشوارع الاخرى. وممكن يتسبب في حوادث للسيارات اللي وراها، انها تتفاجئ ان الشارع وقف يعني بشكل مفاجئ. فلا بد اول شيء من خروج السياره هذه من الطريق. بعد خروجها من الطريق تسجيل الحادث يكون ب3 طرق. الطرق 3 أولها هو تسجيل الحادث عن طريق مطراش 2. طبعا يكون تصوير الصورة 4 أو السيارة الحادث ب4 صور واضحة. يكون منها أيضا لوحة السيارة تكون بشكل واضح. وبعدها ترتفع إلى الجهة المختصة اللي هي دوريات التحقيق، تحقيق المرور، وبعدها بيخططون الحادث ويطلعون النتيجة. كذلك ممكن أنه يروح لأقرب مركز مرور وهناك يتم تخطيط الحادث. ثالثا ممكن ان المرور يجي في المكان اللي يكون فيه، طبعا اذا كان الحادث مش الطرفين مش متفاهمين. اما اذا كانوا متفاهمين اللي الحالتين الاولى ممكن يسجلها عن طريق مطراش او يروح لاقرب مركز. اما اذا كان غير متفاهمين يطلعون من الشارع عشان ما يسببون عرقلة حركه سير، وهناك يتم الاتصال بالطوارئ ويجيهم اللي هو دورية التحقيق. اما من ناحيه عدم تحريك المركبة فهناك مخالفة اللي هي 1000 ريال ونقطتين من النقاط السوداء يتم رصدها على هذا الشخص، حتى نحرك السيارة بعد خلينا نقول 7 أو 10 دقائق بعد ما يعرقل حركة السير، فهذا مخالفة أصلا. فأنت عرقلها يعني الخوف اللي احنا كنا أصلا واضعين المخالفة على أساسه حدث. فلا بد بعد الحادث نتحرك من موقع الحادث ونتكلم خارج الطريق. ओके वाضح. मेरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला सबको हादसात से बचाए, ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाए, लेकिन बहरहाल रोड पे गाड़ियां हैं तो एक्सीडेंट हो ही जाते हैं. अब एक्सीडेंट कई तरीके के होते हैं, कुछ जो हैं वो हल्के फुल्के होते हैं, कुछ थोड़े से उससे ज़्यादा, कुछ
इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें मतलब लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचता है, कई दफ़ा लोगों की वफ़ात हो जाती है, कई दफ़ा कोई गाड़ी में कुचला जाता है। तो ये तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन हम ख़ास तौर पे बात करेंगे उन एक्सीडेंट्स की जो कि हल्के फुल्के होते हैं। मतलब ये कि उसमें गाड़ी चल सकती है और आदमी भी ज़ख्मी नहीं है, इसकी हम बात करें। क्योंकि जो उससे ज़्यादा के हैं, जिसमें बंदा नहीं हिल पा रहा है, जिसमें गाड़ी नहीं हिल पा रही, तो जाहिर है कि आप अपनी जगह से नहीं हिल सकते, तो आपके बस आपका एम्बुलेंस भी आएगी और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो जितने भी इदारे हैं वो आपकी मदद को पहुँचेंगे। लेकिन जब आपकी गाड़ी चल सकती है तो क्या करना चाहिए? मतलब वहीं पे खड़े होकर भीड़ लगाएं या क्या करें? तो उसके जवाब में लेफ्टिनेंट हमद सालिम अन्नहाब अलमर्री ने यह कहा कि ट्रैफिक एक्सीडेंट की 3 वजह हो सकती हैं। या तो रोड, और रोड अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कतर के बहुत अच्छे रोड हैं, कोई खड्डे वड्डे नहीं है, कोई ऐसे अचानक कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से कोई मसला हो जाए। या ये कि गाड़ी अचानक ख़राब हो जाए, गाड़ी में कोई मसला हो जाए, तो उसके लिए ये है कि एक सालाना आपकी गाड़ी का जो है टेक्निकल टेस्ट होता है। और तीसरी जो वजह हो सकती है एक्सीडेंट की, वो ड्राइवर है, और यही ड्राइवर गलती कर बैठता है और हादसात हो जाते हैं। अब किसी भी किस्म का हादसा हो, हल्का हो, बड़ा हो, उससे बड़ा हो, किसी गाड़ी के साथ टक्कर हो, किसी दीवार के साथ टक्कर हो, किसी इंसान के साथ टक्कर हो, किसी मोटरसाइकिल के साथ टक्कर हो, किसी जानवर के साथ टक्कर, कुछ भी हो, वहां से भागना नहीं है। भागने का मतलब ये है कि आपका केस जो है ना सीधा कोर्ट में चला गया। अब आपके ऊपर कोई जुर्माना ट्रैफिक वाले नहीं करेंगे, आपको सीधा कोर्ट में, और कोर्ट जाने और आप जाने कि वो उस वाक़े के मुताबिक वो क्या फैसला करते हैं। तो भागना नहीं है, पहली चीज़ तो ये याद रखें। दूसरी चीज़ ये याद रखें कि एक्सीडेंट हो गए तो उसकी इत्तला ज़रूर देनी है। आप इत्तला करें, मतलब दूसरी गाड़ी नहीं है, आपने दीवार में मार दी गाड़ी, आपने खंबे में मार दी गाड़ी, आपने और कहीं दरख्त में मार दी, आप उसकी इत्तला दें। आप उसके बाद निकले वहां से, लेकिन उसकी इत्तला दे दें, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं कि 2 गाड़ियों में टक्कर हुई है और वो हल्की फुल्की लगी है, बम्पर पे लगाया, मडगार्ड पे लगाया, साइड में लगाया, गाड़ी चल सकती है, आदमी चल सकता है, कोई मसला नहीं है। तो क्या करना है? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको मेन रोड जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां से गाड़ी आपको जो करीब तरीन पार्किंग है साइड में लेके जाना है, ठीक है? और उसकी कई सारी वजह हैं, क्योंकि अगर आप वहीं पे खड़े रहेंगे तो लोग जो, एक तो आपके पीछे पता नहीं कितनी लंबी लाइन लग जाए, दूसरा जो दूसरी तरफ से जो चलने वाले हैं ना रोड की दूसरी साइड से, वो भी रुक रुक के देखते हैं क्या हुआ है, चोट लगी नहीं लगी, गाड़ी का क्या हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, ये लोग क्यों खड़े हैं। तो पता चला दूसरी तरफ भी आपकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। आपके पीछे गाड़ियां हैं, वो अचानक रोड जो कि एक स्पीड से चल रहा था अचानक रुका, पता चला पीछे आपकी वजह से और एक्सीडेंट हो गए। तो अब आपको रुकना नहीं है वहां पे, आप जो करीब तरीन पार्किंग है, दोनों गाड़ियां, चाहे आप लोग आपस में मुत्तफिक हों या ना हो, मतलब मुत्तफिक का मतलब ये है कि दोनों मान रहे हैं हाँ भाई फलां की गलती है, दूसरा कहते हैं हाँ भाई मेरी गलती है। एक सूरत यह है कि दोनों नहीं मान रहे, वो कहते हैं आपकी गलती, वो कहते हैं आपकी गलती। बाहर सूरत गाड़ियां चल सकती हैं, आप चल सकते हैं, तो आपको गाड़ी साइड करनी है। अगर आपके दरमियान इत्तेफाक है कि गलती किसकी है, तो आप 2 तरीकों से वहीं पे फारिग हो सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह से, और आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, ना कहीं और पुलिस स्टेशन में। आप खड़े खड़े मित्राज 2 को के जरिए से आप 4 फोटो लें, दोनों गाड़ियों के 2-2, जिसमें नंबर प्लेट दिख रही हो, जिस जगह का नुकसान हुआ है वो जगह, और उसके बाद उसको अपलोड कर दें। वो सीधा जो ट्रैफिक का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वहां पे चला जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, मतलब आ जाएगा। या ये कि जो करीब तरीन जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है का ऑफिस है वहां पर आप चले जाएं और वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा दें। ये तो 2 रास्ते हैं तब जब आपस में आपका इत्तेफाक है। तीसरी सूरत ये है कि आप चाहते हैं कि नहीं ट्रैफिक वाले वहां पर पहुंचे, तो उनकी जो पेट्रोल पर जो भी गाड़ी होगी वो आएगी आपके पास, लेकिन आपको उसका इंतजार आपको रोड के बाहर खड़े होकर इंतजार करना है। अगर आप एक कह रहा है आपकी गलती, दूसरा कह रहा है आपकी गलती, कोई बात नहीं, आप आपस में नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, लेकिन रोड पे नहीं, रोड के बाहर आप पार्किंग में खड़े होकर, साइड में खड़े होकर के आप वेट करें। अगर आपने गाड़ी नहीं हिलाई अपनी जगह से और वहीं पर रोड के बीच खड़ी है, गाड़ी चल सकती थी, आप भी चल सकते हैं, तो 1000 रियाल का फाइन है, दोनों पर होगा, जो नहीं हिलेगा। एक हिल गया, एक नहीं हिला, एक ने गाड़ी जाके साइड कर दी, एक ने नहीं की, तो जिसने नहीं की उसके ऊपर होगा, दोनों नहीं गए तो दोनों के ऊपर होगा, और 2 ब्लैक पॉइंट मिलेंगे इस वायलेशन को करने वाले को। और हाँ ये भी कि अगर आप जो है हादसा होने के 10 मिनट बाद वहां से हिले तो भी जुर्माना तब भी पड़ जाएगा। बात यह है कि हुआ एक्सीडेंट, फौरन आप नीचे उतरे, देखा, आपने उससे कहा कि भाई चलो साइड में खड़े होकर बात करते हैं, आप साइड में चले गए। आप
तब है ये बात, वरना अगर आप 10 मिनट के बाद जो है वो हिलते हैं तो लेफ्टिनेंट हमद ने कहा कि फिर कोई बात नहीं, फिर आप जो है वो आप वायलेटर ही माने जाएंगे और आपने गड़बड़ कर ही दी है. طيب ارجع اليك سياده الملازم. يعني صار عندي كاني انا قاعد اقدم محاضره. ايش رايك جاسم؟ طيب ربما يكون اخر محور او قبل الاخير، التجاوز من اليمين وعقوبه هذا التجاوز. اول شيء ما هو التجاوز من اليمين؟ التجاوز من اليمين قد يفهم بصوره خاطئه. التجاوز من اليمين احنا تكلمنا في البدايه انه من التعدي على حقوق الاخرين، تعديك على حقوق الاخرين تكلمنا عنها باكثر من مخالفه. من المخالفات ايضا اللي هو التجاوز من اليمين. طبعا التجاوز من اليمين ليس تغيير المسار من المسار الايسر مثلا الى المسار الاوسط، او من اليسار الاوسط الى المسار الايمن او الايسر. هذا يسمى تغيير المسار من حاره الى حاره. اما التجاوز من اليمين فهو لما نشوف الخط الابيض المتصل في الشارع للخطوط المنقوشه، لما يكون الخط بشكل ابيض متصل معناها هنا ممنوع التجاوز. يعني بغض النظر عن الاشارات اللي موجوده، أيوة. تكفي الرسمه اللي في الارض اللي الخطوط اللي باللون الابيض المتصله. فنحصل الخطوط هذه وين؟ في التقاطعات، في الدوارات، في الطرق اللي تكون في الارتفاعات والمنحدرات. السبب ان هذه هو من باب التعدي على حقوق الاخرين. مثلا الناس واقفين في الاشاره ينتظرون، وانا اجي على اساس اني انا بروح يمين مثلا، بعد ما اشوف ان الاشاره فتحت انزل عليهم يسار مثلا، فهذا من باب التعدي على حقوق الاخرين. اثنين، ممكن انا اسكر اللي هو الخروج من الشارع اللي هو الطريق اليمين اللي هو الكتف اليمين. هذا الناس اللي بيروح يمين على الشارع الاخر ممكن اني انا اسكر عليهم بعد ما اروح يمين وارجع يسار على الاشاره نفسها، فممكن اني انا اعرقل الحركه هنا. فهنا تعديت اولا على حقوق الاخرين، ثانيا سكرت الشارع الاخر. طبعا المخالفه هذه هي عليها 1000 ريال، كذلك عليها نقطتين، كذلك عليها حجز اسبوع. و هاي اول مره، هذه اول مره. المره الثانيه ممكن توصل من 10 ايام الى اسبوعين. هذا هو التجاوز من اليمين. اما في الخطوط البيض اللي تكون متقطعه فهنا يسمح التجاوز فيه في اي مكان كان، يعني سواء على شارع رئيسي او شارع فرعي او مثله، ولكن التجاوز بحذر. طبعا في كل المخالفات اللي تكلمنا عنها او كل الاجراءات اللي تكلمنا عنها من المطر الى التجاوز من اليمين، لا ننسى ان نكون نربط حزام الامان. حزام الامان من اهم الوسائل اللي بتقلل من خطر الحادث. طبعا هي على حسب بعض الدراسات ممكن توصل الى 71% من تقليل الحادث. يعني لما اقول لك ان الشخص يمشي بسرعه 120 واصطدم بجسم ثابت، اول شيء يخطر في بالك ان الشخص هذا يخرج من السياره. طبعا خروجه من السياره هذه ممكن تسبب له اعاقات، ممكن تسبب اشكاليات كبيره، ولكن اذا كان الشخص هذا يربط حزام الامان فانا يعني ممكن اضمن له تقليل خطر الحادث ب 71% فقط اذا كان يجلس في السياره. هذا بحد ذاته امان. يعني تختلف جدا عن 71%، ممكن توصل الى 100%. لكن خروجه من السياره هنا هو الاشكاليه الكبيره. يعني اول ما يخرج الشخص من السياره وين بيصطدم؟ يا بيصطدم في جسم ثابت او بيطيح على الارض، وفي الحالتين بتكون الضربه قويه جدا. كذلك عدم الانشغال اثناء القياده باي وسيله من اللي تكلمنا عنها، اللي هي انشغال بالقياده، اللي هي سواء كانت الهاتف او الاكل والشرب او الاجهزه المرئيه والاتصالات المرئيه. دائما الشخص يكون ملتزم بقانون المرور، ونتمنى ان شاء الله السلامه للجميع. मेरा जो सवाल था वो ये कि राइट साइड से ओवरटेक करने का मतलब क्या है और उसका जुर्माना क्या है। तो उसके जवाब में लेफ्टिनेंट हमद अन्नहाब अल-मर्री ने ये कहा कि लोग राइट साइड से ओवरटेक को गलत समझते हैं। यानी बहुत सारे लोग जो हैं इसका मतलब ही गलत समझते हैं। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, उस रोड के ऊपर 3-4 ट्रैक बने हुए हैं, आप फर्स्ट ट्रैक से सेकंड में चले गए, सेकंड से आप थर्ड में चले गए। इसको ओवरटेक या गलत ओवरटेक करना नहीं कहते हैं, इसको सिर्फ ट्रैक चेंज करना कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले तो ये जो एक कंफ्यूजन है इसको आप खत्म करें। ट्रैक चेंज करने को गलत ओवरटेक करना नहीं कहते हैं। अब किसको कहते हैं भाई, ये एक सवाल है। फिर क्या होगा जो ओवरटेक करना है? अब आप देखें रोड के ऊपर जहां भी, मतलब ये गलत ओवरटेक कौन सा है वो आप समझें।
रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि एक वाइट लाइन सी पूरे जितने भी रोड्स हैं वहां पे हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, हम कतर की बात कर रहे हैं, सफेद लकीर खींची चली जाती है। अब ये जो वाइट लाइंस हैं, या तो इस टुकड़े टुकड़े में आपको नजर आएगी कि लाइन है, फिर 1 मीटर के बाद नहीं है, फिर 1 मीटर के बाद है, इस तरह से चल रहा है ये, और या फिर वो लाइन है जो कि लगातार जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है वो लाइन चली जा रही है, चली जा रही है, कहीं बीच में वो लाइन टूटी नहीं है, मुसलसल सफेद लकीर है। तो ये जिस रोड पर और जहां पर भी ये लकीर आपको नजर आए, वाइट वाली, येलो वाली, जो कि लगातार चल रही है आपके साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहां से ओवरटेक नहीं करना है। आप जिस ट्रैक पे हैं उसी पे आप चलते रहें, उस लाइन के बाहर जाकर के आपको ओवरटेक नहीं करना है, ये कानूनी तौर पर गलत होगा। अब होता क्या है, उन्होंने कहा कि जैसे जो इस तरह की जो लाइन्स हैं आपको नजर आएंगी, जैसे दवार के पास आपको नजर आएगी, राउंड अबाउट के पास या इंटरसेक्शन के पास, या कहीं पर अगर चढ़ाई है या उतराई है वहां पर आपको, या ये कि मोड़ है कहीं पर, तो आपको नजर आएगा कि वो एक मुसलसल लाइन खींची चली जाती है, सफेद लकीर सी होती है वहां पर। अब जो आमतौर पर जो होता है वो ये कि सिग्नल पे देखा कि लंबी लाइन लगी है, अब आपने चलना शुरू किया दूर से, और देखने वाले ये देख रहे हैं कि आपको शायद राइट साइड में जाना है, इसलिए आप चल रहे हैं, वो जो रोड साइड जो जगह है आप चलते जा रहे हैं। जब आप सिग्नल के करीब पहुंच गए तो आपने क्या किया कि सिग्नल ग्रीन हो गया, आपने फौरन लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट वाले ट्रैक में। ये है गलत ओवरटेकिंग। अब इससे एक तो ये कि आपने दूसरे के हुकूक जो के लाइन में खड़े थे उनका हक मारा, और दूसरे कि जिनको राइट जाना था उनका रास्ता रोक के आप खड़े हो गए, क्योंकि आपके पीछे कुछ लोग होंगे जिनको राइट जाना है, तो ये गलत है। अच्छा जी, इसका जो जुर्माना है वो 1000 रियाल है, 1000 रियाल उसका फाइन है, और 2 ब्लैक पॉइंट्स हैं, और 1 हफ्ते के लिए गाड़ी आपकी जब्त कर ली जाएगी, बुक कर ली जाएगी 1 हफ्ते तक, और अगर सेकंड टाइम आपने किया तो ये मुद्दत बढ़ जाएगी, 10 दिन 2 हफ्ते बढ़ती चली जाएगी। तो ये है उसका जुर्माना। जहां पर ये जो वाइट वाली जो लकीर मैंने कहा कि वो मुसलसल नहीं है, टूट के, वहां पर आप ओवरटेक कर सकते हैं या ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और लेफ्टिनेंट हमद ने कहा कि हमेशा होशियार रहें, हमेशा सीट बेल्ट बांध के रहें, क्योंकि सीट बेल्ट उन्होंने कहा कि बाज़ स्टडीज़ के मुताबिक 71% इससे ख़तरा कम हो जाता है। और उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर आप 120 की स्पीड पे जा रहे हैं और गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो गई, टकरा गए कहीं पे, तो आप, सीधी सी बात है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ तो आप गाड़ी से बाहर जाके गिरेंगे। अब बाहर जाके गिरे, चाहे ज़मीन पे गिरें, चाहे किसी और चीज़ से टकराएं, दोनों सूरतों में इंतहाई ख़तरा है। लेकिन सीट बेल्ट की वजह से अगर आप गाड़ी के अंदर ही रह जाएंगे तो गाड़ी के अंदर रहना ही आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, और आपकी जो ख़तरा था उसको 71% तक कम कर देता है या कम कर सकता है। अखीरन सियादत मुलाजिम अहमद सालिम नहाब अलमर्री ضابط في إدارة التوعية المرورية، الكلمة الأخيرة للسادة المستمعين الأخيرة. تكلمنا فيه، ولكن مثل ما قلت لك اولا واخيرا اتباع التعليمات واتباع الخطوط المنقوشه والعلامات الموضحه في الشارع، اتباع قانون المرور ورجال المرور اللي موجودين في الشارع. طبعا هم موجودين لخدمتك دائما، لتنظيم حركه السير، للتقليل من المخاطر، الحوادث والوفيات. طبعا هذا هدف سامي لابد انه يكون باجتماع، او يعني ما احنا نقول يد واحده ما تصفق، فالاداره العامه للمرور لوحدها ما تقدر انها توصل لهذا الهدف اذا ما كان في تعاون من الشعب اللي هو مواطن ومقيم. فلا بد من قائدي المركبات في الشارع الالتزام ومساعده الاداره العامه للمرور للوصول الى هذا الهدف. نتمنى ان شاء الله السلامه للجميع واتباع القوانين والتعليمات. الشرطي المرور في الشارع سياده الملازم يعني هو بمثابه الاشارات. نعم، شرطي المرور في الشارع بمثابه الاشاره اللي باللون الاحمر. إيه؟ فاذا اعطى تعليم للوقوف كان الاشاره باللون الاحمر، فكسر او يعني مخالفه شرطي المرور ممكن انها تعطي نفس، مش ممكن الا اكيد انها تكون مثل مخالفه الاشاره الحمراء. نعم. إيه؟ تمام. मैंने उनसे कहा कि जाते जाते आखिरी बात आप जो करना चाहें हमारे सुनने वालों से। उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन तमाम पहलुओं पर या अक्सर पहलुओं पर बात कर ली है, लेकिन ये है कि मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जो कानून है उसकी आप पाबंदी करें, जो उसूल ज़वाबित ट्रैफिक के उनका आप ख्याल रखें, जो रोड के ऊपर जो मुख्तलिफ आपको निशानात जो आपको मिलेंगे, जो कलर
उनका आप ख्याल रखें, उनके और जो ट्रैफिक के जो लोग मौजूद होते हैं, जो सिपाही पुलिस वाले मौजूद हैं, उनकी बातें आप मानें और हम आपकी खिदमत में हैं, हमेशा आपके लिए हैं। लेकिन ये याद रखें कि हम अकेले मिलकर, यानी कि खुद सिर्फ जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट अकेला वो कुछ नहीं कर सकता, बल्कि आपका सोसाइटी का ताउन उसको चाहिए, क्योंकि ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिलजुल करके ही हम काम कर सकते हैं और महफूज बना सकते हैं अपने जानो माल को। और ये भी याद रखिए कि अगर कहीं पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो आप यूँ समझिए कि वहाँ पे वो सिग्नल है। तो अगर ट्रैफिक पुलिस वाले का इशारा आपने नहीं माना तो मतलब ये है कि आपने रेड सिग्नल क्रॉस किया है, तो जो जुर्माना लाल सिग्नल तोड़ने का, रेड सिग्नल तोड़ने का है, वही जुर्माना पुलिस वाले की बात न मानने का भी है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि वो जो है ना, वो ट्रैफिक सिग्नल के बराबर है वो। तो इसी के साथ प्रोग्राम पुलिस और आवाम का भी जो है अब तकरीबन वक्त ख़त्म होता है। सिर्फ हम अपने मेहमान का अब शुक्रिया अदा करेंगे। फ़ी निहायत लक़ा ला यसअनी ला नतक़द्दम बिश्शुक्र जज़ील लिस्सियादत अल-मुलाज़िम मोहम्मद सालिम अन्नहाब अल-मर्री ज़ाबित फ़ी इदारत अत-तौइया अल-मुरूरिया बिल-इदारा अल-आम्मा लिल-मुरूर बिवज़ारत दाखिलिया अल-क़तरिया। शुक्रन सियादत अल-मुलाज़िम अला हुज़ूरिकुम मअना अल-यौम व इताहतक लना हाज़िही अल-मालूमात मुजद्दिदा। अल्लाह याफ़ीकुम, कफ़ैत वफ़ैत वबैद अल्लाह वजहक। इसी के साथ प्रोग्राम पुलिस और आवाम का आज का हल्का भी तमाम होता है। अपने मेज़बान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद को हमेशा की तरह इस पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए कि कानून की इज़्ज़त कीजिए, कानून आपकी इज़्ज़त करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।